Okay, starting with the first example, which is example 15-1, जिसमें हमारे पास एक particle है, which is this 100 kg stone, and this stone is originally at rest on a smooth horizontal surface. It means that for this particular example, we are not going to include the force of friction in our analysis because the surface is smooth. If a towing force of 200 Newton acting at an angle of 45 degrees is applied to this stone for a time period of 10 seconds. So आपने इस stone के ऊपर एक towing force apply की, which is force of 200 Newton at an angle of 45 degrees for 10 seconds. You need to determine what should be the final velocity of this stone after this 10 seconds time interval, कि stone कितनी velocity से travel कर रहा होगा. And secondly, what should be the normal force which this surface would be exerting on this stone during this time interval. तो दो चीजें आपने find out करनी है. One is the final velocity of this particle. The other one is the normal force which the surface would be exerting on this particle. Okay, अगर हम मुख्तलिफ variables या मुख्तलिफ quantities जो इसमें involve हैं उनकी तरफ नजर दौड़ाएं तो देयर आर सम फोर्सेस जिसमें आपका वेट दिया जाता है. ये अप्लाइड फोर्स है जो एक्ट कर रही है. सो फोर्सेस आपकी यहाँ इन्वॉल्व हैं, प्लस आपसे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है और ये 10 सेकंड का टाइम इंटरवल आपको गिवन है. सो एफ V and T are basically involved here. So the principle of impulse and momentum will give you a direct solution of this problem. However, later we are also going to see कि हम प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम के अलावा क्या कोई और मेथड भी अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सिंस एफ वी एंड टी आर इन्वॉल्वड हियर, सो इट मींस दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड डायरेक्टली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम. नाउ इन ऑर्डर टू अप्लाई द principle of impulse and momentum, first of all we need to draw the free body diagram of this stone. In order to draw the free body diagram, we need to isolate this stone from the surrounding. और isolate करने के बाद हम इसके जो isolate करने के साथ साथ connections खत्म कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई reaction force मिल रही होगी. So one force which is acting on this stone is the applied force of 200 Newton. So हमने इसको show कर दी है. इसके अलावा the weight of this particle would be acting downward. And once you remove the floor connection, you are going to get a normal reaction force NC in the upward direction. So these are the three forces which are acting on this stone. There shouldn't be any force of friction involved because the surface is smooth. Okay, now in order to apply the principle of impulse and momentum, let us define the axis. First of all, we are going to take the conventional XY axis in order to solve this problem. So applying the principle of impulse and momentum, that principle of impulse and momentum says that if you are applying it along the x-axis, so that principle says that the initial momentum along x-axis, which is equal to mvx1 plus sum of all the impulses which are acting along x-axis, जिसको हम लिखते हैं by the formula summation integral t1 to t2 f dt. And since we are talking about x-axis, so this x is going to be equal this f is going to be equal to fx. So mvx1 plus summation fx dt should be equal to mvx2. So this is the principle of impulse and momentum which is being applied on this particle along the x-axis. Now एक एक करके हम इन टर्म्स को देखते हैं. What should be the initial momentum of this particle mvx1? 0. Since the particle was at rest, so the initial momentum of this particle is going to be 0. mvx1 वाली term आपकी 0 हो जाएगी. Now, as far as the final momentum of this particle is concerned, this should be equal to mv2, where m is the mass and v2 is the velocity of this particle at t equal to 10 seconds. Okay, now what forces should be contributing towards these impulse term? कौन-कौन सी forces x-axis के along act कर रही हैं? Is component of towing force only. The component of towing force only, which is going to be this component, which is say 200 cos of 45. So how much impulse would this force create? 200 F into del T. So since it is a constant force, 200 cos 45, impulse क्या होता है? Force को हम time से multiply कर देते हैं. So multiply it with delta t, which is 10 seconds. ये आपके पास impulse आ जाएगा.
what should be the sign of this impulse? ये force positive x-axis के along है या negative x-axis के along? Positive. Positive. Since this force is Positive. acting along the positive x-axis, so it would be creating a positive impulse. 0 is the initial momentum plus 200 cos 45 into 10 should be equal to mv2. So once you solve it, the velocity would comes out to be 14.14 meter per second. So this is going to be the velocity of this stone after 10 seconds of application of this force. I hope that everything is clear to all of you. कोई query हो आपकी up till this point, so you can ask now. Clear, sir. Okay, now let me ask you some questions. Let us suppose that we need to solve it using the equation of motion rather than the principle of impulse and momentum. ठीक है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपने कहा कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एनीवन स्टूडेंट जो बता सके? सर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. ओके, सो इट मींस के मैं समेशन fx इक्वल टू ma(x) अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर और यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, क्योंकि फोर्सेस तो इस पे एक्ट कर रही है 20 cos 45, तो आपके पास 20 cos 45 से फोर्स एक्ट कर रही है, उससे आप एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी. ऐसे ही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v by t, तो उधर से t v मालूम कर सकते हैं. ओके, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिली तो यू शुड अप्लाई सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन हियर. सो व्हिच कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस स्टोन in order to relate or find the velocity v? vf equal to vit. So it is going to be v equal to v naught plus act, isn't it? यहाँ आपके पास v naught जो है वो 0 आ जाएगा, ac आपके पास वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन से आई है और टाइम आपके पास 10 सेकेंड है. सो इट विल गिव यू डायरेक्टली द वेलोसिटी और आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इट विल गिव यू द सेम आंसर विच इज 14.14 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हुआ क्या कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे थे तो वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग 2 स्टेप्स रादर देन 1 सिंगल स्टेप जो कि आपको लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम के प्रिंसिपल से मिल रहा है. इज दिस पॉइंट क्लियर? दोनों तरीकों से ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इंपल्स एंड मोमेंटम आपको सिंगल स्टेप में सोल्यूशन दे रहे हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ये पॉइंट क्लियर है हर एक को? Yes. Yes sir. ओके, नाउ लेट अस सपोज के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया और किसी स्टूडेंट के जहन में सिर्फ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था. उसने कहा मैं इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. सो इफ यू आर यूजिंग द वर्क एनर्जी मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रिंसिपल, which work energy method which you are going to use, either the principle of work and energy or the conservation of energy? Working energy method. Why not conservation of energy? सर वो भी कर सकते लेकिन उसमें सर पोटेंशियल एनर्जी का कोई वो नहीं है. Just a minute, तारिक. कंजर्वेटिव फोर्सेस भी सर वो भी. तारिक एक सेकंड. Can we use conservation of energy here? जी जवाब दें. Can we use conservation of energy here? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में शर्त क्या थी कंजर्वेशन के लिए? सर डिस्टेंस फाइंड. नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने की शर्त क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल. तो क्या यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है कि नहीं? यस सर, एक अनबैलेंस्ड फोर्स है 200 न्यूटन. Because it is applied force and applied force is an example of a non-conservative force. So जब आपकी non-conservative force act कर रही हो, it means कि आप फिर conservation of energy वाला principle नहीं अप्लाई कर सकते. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप वर्क एनर्जी मेथड के थ्रू जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन नॉट use the conservation of energy principle here because of this 200 Newton force which is a non-conservative force. It means कि फिर आप इसको सॉल्व करेंगे using the principle of work and energy जो कहते हैं initial kinetic energy plus work done by all the forces should be equal to the final kinetic energy. ऐसा ही है? Yes sir. अब मुझे ये बताएं कि इसको काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स तो ठीक है, इनिशियल रेस्ट पे था तो T1 आपके पास 0 हो गई, T2 हाफ mv² हो जाएगा. वर्क डन वाली टर्म आप कैसे डिटरमिन करेंगे? थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सकते हैं? सर एक्सेलरेशन फाइंड करके कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन यूज करके फाइंड करेंगे.
क्योंकि वर्क, अच्छा कौन सी इनमें से कौन सी फोर्सेस वर्क की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी? सर 200। तो 200 का कंपोनेंट जो कि 200 cos 45 है, ऐसे ही है। सो वर्क इसका हो जाएगा 200 cos 45 इंटू एस। पॉजिटिव वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा? पॉजिटिव सर, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ऑफ बिकॉज आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। सो प्लस 200 cos 45 इंटू एस। ये जो एस है ये कहां से आपके पास आएगा अगर आप वर्क एनर्जी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इट मीन्स कि आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन जो कि थी s इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s माइनस एस नॉट आपका s हो जाएगा, वी नॉट टी आपकी जीरो हो जाएगी बिकॉज इनिशियली वो रेस्ट पे था। तो हाफ ए टी स्क्वायर से आपको ये s की वैल्यू मिलेगी और फिर आप उस s को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो कहानी कोई ज्यादा लंबी नहीं हो गई। यस सर। जबकि सिंगल स्टेप में यहाँ इंपल्स एंड मोमेंटम से आपको सोल्यूशन मिले। तो काइंडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट वुड बी योर जजमेंट। आंसर तीनों से आपको ये 14.14 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा वेलोसिटी, लेकिन आपने अपना टाइम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना होता है। तो एक प्रॉब्लम जो कि तीनों काइनेटिक के मेथड से हल हो रहा होगा, और जनरली काइनेटिक के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो तीनों तरीकों से हल किए जा सकते हैं। आपने खुद जज करना होगा कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई करते हुए अपना टाइम जो है वो बचा सकता हूं। वो आपकी टोटली जजमेंट होगी, और वो जजमेंट आप किस तरह कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा आप तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर आइडिया होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स किस किस मेथड के साथ जल्दी सॉल्व की जा सकती हैं। सो फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काइंडली कोशिश करिएगा कि ये तीनों मेथड्स आपको आते हों, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मेथड की तैयारी करते हैं प्रोबेबली प्रॉब्लम तो वो सॉल्व हो जाएगा उस एक मेथड से, लेकिन इशू क्या होगा कि हो सकता है मैंने उस सवाल के लिए 10 मिनट रखे हों, आप आधा घंटा उस पर लगा के जवाब निकाल लें, तो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम जो है वो खा रहे होंगे। तो कोशिश करें कि जो बेस्ट मेथड है उसको इस्तेमाल करें। एग्जाम में मैं कहीं ये नहीं लिखूंगा कि ये प्रॉब्लम आपने इससे सॉल्व करनी है, या अगर आपने लंबे मेथड से सॉल्व किया तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। अगर लंबे मेथड से भी सही सॉल्व किया तो आपको मार्क्स तो पूरे मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम प्रोबेबली फिर सही तरह मैनेज नहीं हो पाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? इट सेज कि यू नीड टू डिटरमिन द नॉर्मल फोर्स which this surface exerts on the stone during this time interval. So अगेन चॉइस मेरे पास है, एक तो मैं इंपल्स एंड मोमेंटम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या किसी और तरीके से भी मैं ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। सर वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके देख लेंगे। By applying the equation of motion along the y-axis, I can get that as well. So लेकिन चूंकि यहाँ मैं impulse and momentum यूज कर रहा हूँ, so directly मैं free body diagram पे impulse and momentum का ही principle अप्लाई करता हूँ, जो कहता है कि initial momentum along y-axis plus sum of all the impulses that are acting along y-axis should be equal to the final momentum along the y-axis. जहां तक ताल्लुक इनिशियल मोमेंटम का है, so since the particle was at rest, तो आपके पास ये जो इसका इनिशियल मोमेंटम आएगा वो जीरो आ जाएगा। व्हाट अबाउट vy2? वो भी जीरो होगा बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, तो उसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा। y कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। सो आपके पास ये दोनों टर्म जीरो हो गई। जो फोर्सेस y एक्सिस के अलोंग इंपल्स बना रही हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं, weight, normal force and vertical component of the applied force. So these are the three forces: weight, normal force and the vertical component of the applied force. इसमें normal force और vertical component of applied force positive y direction में, so they would be creating a positive impulse. Weight is acting towards the negative y axis, so it would be creating a negative impulse. कितना इम्पल्स होगा? आप NC को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। सो NC जो आपकी फोर्स है उसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास इम्पल्स आ गया ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वेट को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, आपको वेट की वजह से इम्पल्स मिल जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ क्यों आया? क्योंकि वेट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इम्पल्स क्रिएट करे, बिकॉज वी आर टेकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। इसके अलावा आपके पास अप्लाइड फोर्स है 200 sin 45, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इम्पल्स मिल जाएगा। अच्छा चलें, एक छोटा सा सवाल, अगर यहाँ से मैं 10 हटा दूं तीनों टर्म्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस के बैलेंस, वो समेशन Fy बन जाएगा। सो आपकी अपनी चॉइस है, आप इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल लगा लें या सिंपली आप समेशन Fy इक्वल टू 0 लगा लें। आपके पास NC की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 839.6 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?